Okay, it's good. It is an interface between the computer, or we can say the hardware, and the user. Computer itself is nothing but your hardware. तो CPU, memory, motherboard, ये सारी की चीजें क्या है? Hardware है. Okay, computer system is nothing but your hardware. Okay, and your operating system is an interface between these two. Okay, when user wants to interact with your hardware or your computer system, so it must have used the operating system. Okay, so this is an definition of your operating system. Operating system is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware, and it controls the execution of all kinds of programs. Okay, so we have seen this diagram also. User is going to connect with the hardware, so it must go through the software, that is operating system. So also we have discussed the example of operating system. We know that Windows XP, Windows 7, Windows 8, Linux, Unix, ये सारी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल है. फंक्शंस ऑफ ओएस वी हैव डिस्कस मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड लाइकवाइज. ओके, ये पॉइंट भी हमने कंप्लीट किया था. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय योर operating system. That is means program execution, IO operations, file system manipulation, communication, error detection, resource allocation, protection. Okay, so these are the services which are provided by your operating system. Okay, so we have also finished this part, that is system structure layer approach. Okay, एक बॉटम लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, लाइक वाइज ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे. और हर एक लेयर उसके लोएस्ट लेयर से क्या करती है, फंक्शंस या सर्विसेज एक्सेप्ट करती है, एक्सेस करती है. ओके, सो layer 0 is always an hardware, and layer n, that is the topmost layer, is always an user. Okay, layer 0 always the hardware, and layer n, that is the topmost layer, is always the user. Okay, इनके बीच में according to the different operating system, different layers will be there. Okay, you can see in the diagram also. We have taken the example like this. हार्डवेयर इज द बॉटम लेयर, उसके बाद प्रोसेसर शेड्यूलिंग लेयर, मेमोरी एंड आईओ डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल्स, ये है डिफरेंट लेयर्स. और हर एक लेयर क्या कर रही है, उसके नीचे वाले लेयर से कनेक्ट हो रही है, उसके फंक्शंस या सर्विसेज एक्सेप्ट कर रही है. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ ओएस. ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स तो क्या है. द फर्स्ट वन इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. The second, time sharing operating system, distributed operating system, network operating system, and the last one is what, real time operating system. Okay, so let's discuss this one by one. Okay, I will share one page with you so that we can gather the information about these types of your OS. Just a second. Is the screen visible? Types of an operating system. Yes. Yes. Okay, so the very first type is nothing but your batch operating system. Okay, so what will happen in batch operating system, the similar jobs are grouped together into batches. Okay, with the help of some operator, and these batches are executed one by one. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर टाइप्स के जो भी जॉब्स हैं उनको, उनका एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं और उनको क्या बैचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं. मतलब इस 4 जॉब्स का एक बैच, दूसरे 4 जॉब्स का दूसरा बैच. ओके, ये सारी चीज़ें हम एक ऑपरेटर के हेल्प से करते हैं. ओके, और उसके बाद हर एक बैच को एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन. Okay, so for example, let us assume that we have 10 programs. Okay, that need to be executed. हमारे पास 10 प्रोग्राम है और जो हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है. some programs are written in C++ and some in C and the rest in Java. तो कुछ प्रोग्राम C++ में है, कुछ C में है और कुछ Java लैंग्वेज में है. Okay, so now every time when we run these programs individually, then we will have to load the compiler of that particular language and then execute the code. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब भी हमें ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने हैं वन बाय वन, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रिस्पेक्टिव कंपाइलर पहले लोड करना पड़ेगा एंड देन वी विल यूज एग्जीक्यूट अवर कोड. ओके, सी का कंपाइलर अलग है, C++ का अलग है, जावा का अलग है. ओके, तो हर एक बार हमें एवरी टाइम वी नीड टू लोड द कंपाइलर ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज. बट इफ वी मेक द बैच ऑफ दिस 10 प्रोग्राम्स, इन 10 प्रोग्राम्स का हमने क्या किया, बैच क्रिएट किया, तो क्या होगा, the benefit will be what, for the C++ batch you need to load the compiler only once. तो हम क्या करेंगे, कैसे बैचेस करेंगे, पहले प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करेंगे, C++ के कौन से कितने प्रोग्राम से, सी के कितने हैं, जावा के कितने. ओके, तो हर एक का ग्रुप क्रिएट करेंगे.
C++ का एक ग्रुप, सी का एक ग्रुप, जावा का एक ग्रुप, ओके। और तीनों कंपाइलर्स हमारे पास है, ओके। सो अगर मैंने पहली बैच जो है मेरी C++ की मैंने एग्जीक्यूट करनी है, तो मुझे C++ का कंपाइलर लोड करना पड़ेगा, ओके। और वो कंपाइलर कब बाहर आएगा, जब ये पूरी बैच खत्म हो जाएगी। C++ पूरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही वो कंपाइलर हम बाहर निकाल सकते हैं और जावा का कंपाइलर हम लोड कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली फॉर C also the compiler needs to be loaded only once and the whole batch gets executed, okay. So the following image describes, कौन सी इमेज है ये देखो आप। तो यहाँ पे एक ऑपरेटर की हमने हेल्प ली है। पहले हमने कैटेगराइज किया है, तो जो भी प्रोग्राम्स है उनको जॉब्स में कन्वर्ट किया है, बैचेस में कन्वर्ट किया है, ओके। फॉर एग्जांपल जॉब 2, जॉब 8 एंड जॉब 15 आर फॉर द सी प्रोग्राम एंड जॉब 1 एंड 4 आर फॉर द जावा प्रोग्राम। तो दोनों के क्या किया हमने, बैच किए और 1 by 1 बैच हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज नथिंग बट योर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एडवांटेज क्या है इसका, the overall time taken by the system to execute all the programs will be reduced। तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो हर एक बार लोड कंपाइलर लोड करो, उसको अनलोड करो, ये सारी चीजें हमें नहीं करनी पड़ेगी। एक ही बार हम कंपाइलर को लोड करेंगे, पूरी बैच एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद कंपाइलर को अनलोड कर देंगे, ओके। आफ्टर दैट द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी शेयर्ड बिटवीन द मल्टीपल यूजर्स। तो ये एक बैच हमने क्रिएट की है, हमारी जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, okay. So it is also having some disadvantages like manual interventions are required between two batches। अभी ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें जो ऑपरेटर है वो मैनुअल है, ओके। वो एक ह्यूमन बीइंग है that will be creating these jobs, that will find the different kinds of jobs, the task categories of these jobs and it will create in batch। तो मैनुअल इंटरवेंशन की यहाँ पे जरूरत है। And second disadvantage is what? The CPU utilization is low because the time taken in loading and unloading of batches is very high as compared to execution time। तो CPU का utilization हम high कब बोल सकते हैं, CPU utilization अगर CPU every time is busy then its utilization is high, okay। और उसका कुछ time idle state में रहता है, खाली state में रहता है, that will be your utilization is what? low, okay। तो यहाँ पे CPU utilization क्या है, low है, क्योंकि time taking in लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ योर बैचेस इज वेरी हाई। तो ये एक बैच को लोड करो, उसका काम खत्म होने के बाद उसको अनलोड करो, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एग्जीक्यूट तो फास्ट होता है, ओके, लेकिन लोडिंग एंड अनलोडिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। दैट्स वाई द CPU यूटिलाइजेशन इज वेरी लो इन दिस केस। एनी डाउट इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? यस, No, ma'am. okay. So the second type of your operating system is time sharing operating system, okay. So in a multitasking operating system, multitask means what, multiple tasks are executed in same time, okay. So in multitasking operating system, more than one process are being executed at a particular time with the help of some टाइम शेयरिंग कंसेप्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एक से ज्यादा प्रोसेसेस क्या कर रही है एट द सेम टाइम, वे क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है विद द हेल्प ऑफ योर टाइम शेयरिंग कंसेप्ट। अभी टाइम शेयरिंग क्या है ये देखते हैं, ओके। सो इन द टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट वी डिसाइड अ टाइम दैट इज कॉल्ड टाइम क्वांटम, and when the process starts its execution, then the execution continues for only that amount of time, and after that other processes will be given chance for the amount of time only, okay। इसका मतलब क्या है, तो इन टाइम शेयरिंग सिस्टम टाइम को शेयर किया जाता है, okay। फॉर एग्जांपल वी हैव 5 प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट, ओके, हमें 5 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, ओके। तो हम यहाँ पे टाइम क्वांटम डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड का मेरा टाइम क्वांटम है, ओके। तो फॉर प्रोसेस 1, 4-5 प्रोसेस है मेरे पास, तो प्रोसेस 1 विल एग्जीक्यूट फॉर 1 सेकेंड, उसके बाद वो प्रोसेसर से चली आएगी, प्रोसेसर उसे बाहर फेंक देगा, प्रोसेस 2 को लेगा, उसको 1 सेकेंड के लिए चलाएगा, अगेन उसको बाहर निकालेगा, थर्ड प्रोसेस को डालेगा, ओके। मतलब यहाँ पे टाइम को क्या किया है, शेयर किया गया है, ओके। मल्टीपल प्रोसेसेस क्या करिए, टाइम को शेयर की है, ओके। तो दैट इज नथिंग बट योर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे इक्वल चांस मिलता है हर एक प्रोसेस को टू एग्जीक्यूट, ओके। सो in the next cycle the first process will again come for its execution and it will be executed for that time quantum only, okay। and again next process will come। तो for example प्रोसेस 1 को 2 सेकेंड्स लग रहे हैं एग्जीक्यूट होने, पूरा एग्जीक्यूशन उसका 2 सेकेंड में कंप्लीट होगा, लेकिन हमने बस 1 सेकेंड के लिए चलाया क्योंकि हमारा क्वांटम टाइम 1 सेकेंड है, मतलब उसका एक पार्ट एग्जीक्यूट होने का बाकी है, ओके। तो ये 5 प्रोसेस 1 सेकेंड के लिए चलेंगी, उसके बाद first process will again come, it will run for 1 second, again it's finish its execution, again process 2 will come, it will also run for the 1 second, अगर वो फिनिश हो रही है तो नहीं हो रही है तो वापस वो शेड्यूल होंगी,
प्रोसेसर के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम शेयर कर रहे हैं और उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम क्वांटम। ओके, सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू till the all process will get finished. Okay, so you can see in the diagram प्रोसेस 5 यहाँ पे यूज किया है। ओके, और सीपीयू एक है, तो हर एक क्वांटम के लिए क्या मतलब सर्कुलर मोशन में ये चलेगा। जब तक आपकी प्रोसेस पूरी खत्म नहीं होती तब तक ये 1 सेकेंड के लिए चलेंगी। ओके, so this is the diagram for your time sharing system and it is having some advantages. Okay, so since equal time quantum is given to each process, so each process get equal opportunity to execute. ओके, तो फिक्स्ड टाइम क्वांटम है, हर एक प्रोसेस के लिए दिया जाता है, तो आपकी जो प्रोसेस है इक्वल अपॉर्चुनिटी उसे मिलेगी टू एग्जीक्यूट। ओके, सेकेंड एडवांटेज इज दैट द सीपीयू विल बी बिजी इन द मोस्ट ऑफ द केसेस एंड दिस इज गुड टू हैव अ केस। ओके, तो जैसे कि हमने बोला इन प्रीवियस, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई कब रहता है, जब सीपीयू इज बिजी ऑल द टाइम, तो सीपीयू का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, दैट इज द गुड थिंग। Okay, if CPU becomes in an idle state, then the utilization becomes very low and that is not good case. Okay, so in this case CPU every time it is in busy, एक सेकंड के लिए ये चलेगा, दूसरे सेकंड के लिए वो चलेगा, and that is the advantage. मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि CPU utilization is high. Okay, in the previous case CPU utilization is low because we need to load and unload the batches. Okay, so it is also having some disadvantages. The process having higher priority will not get the chance to be executed first because the equal opportunity is given to each process. अभी यहाँ पे क्या है, अगर कोई एक प्रोसेस आ रही है जिसकी प्रायोरिटी हाई, मतलब इसके अभी के अभी एग्जीक्यूट होना है। ओके, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, टाइम क्वांटम यूज किया है, तो उसको भी वेट करना पड़ेगा। जब अदर प्रोसेसेस 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होंगी तो प्रोसेस 4, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 4 की प्रायोरिटी जो है वो हाई है, फिर भी उसे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा बाकी प्रोसेस के लिए। ओके, सो दिस इज व्हाट योर टाइम शेयरिंग सिस्टम। एनी डाउट इन दिस? Yes, is there any doubt? No, ma'am. Okay, so the third operating system type of operating system is distributed operating system. Okay, so in a distributed operating system we have various systems and all these systems have their own CPU. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के में क्या होता है, बहुत सारी सिस्टम्स हमारे पास होती है और हर एक सिस्टम का सीपीयू, मेन मेमोरी, सेकेंड मेमोरी एंड देयर आर सम रिसोर्सेज। ओके, तो हम यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं और हर एक सिस्टम का सीपीयू, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रिसोर्सेज अलग अलग है। ओके, so these systems are connected to each other using a shared communication network. तो ये जो डिफरेंट सिस्टम्स है तो ये एक शेयर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट की गई है। ओके, सो हियर ईच सिस्टम कैन परफॉर्म इट्स टास्क इंडिविजुअली, तो हर एक सिस्टम उसका टास्क अपना अपना खुद परफॉर्म करने वाली है। ओके, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, रिमोट एक्सेस। ओके, तो इसका बेस्ट पार्ट क्या है, तो हम रिमोट एक्सेस इसे यूज कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल वन यूजर कैन एक्सेस द डेटा ऑफ द अदर सिस्टम एंड कैन वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, मतलब ये सारी डिफरेंट सिस्टम्स है, डिफरेंट लोकेशंस पे है, लेकिन ये एक शेयर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट है। ओके, तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम का डेटा यूज कर सकती है, एक्सेस कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। सो द रिमोट एक्सेस इज पॉसिबल इन दिस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ओनली द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज व्हाट, रिमोट एक्सेस। ओके, तो कहीं भी ये सिस्टम्स होंगी, ये की प्लेस पे होंगी, एक ही इन्वायरमेंट में होगी, ऐसा नहीं है, कहाँ पे भी ये सिस्टम हो सकती है, बट उनको शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए। तो हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम का क्या कर सकती है, डेटा यूज कर सकती है, सर्विसेज यूज कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन नेटवर्क की एक मीडियम दिया गया है और उसके थ्रू हमारे क्या है, डिफरेंट सिस्टम से वो कनेक्टेड है और हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम का क्या कर सकते हैं, डेटा यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसका एडवांटेज क्या है, सिंस द सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, the failure of one system can't stop the execution of processes because the other system can do the execution. ओके, तो ये सारे सिस्टम जो है कनेक्टेड है, तो इनमें से एक सिस्टम अगर फेल हो गई, किसी की हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, किसी का मदरबोर्ड खराब हो गया, तो ये पूरा एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो बाकी की सिस्टम्स है वो उनका काम परफॉर्म कर सकती है। ओके, सो रिसोर्सेज आर शेयर्ड बिटवीन ईच अदर। फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, ओके, किसी एक लोकेशन पे प्रिंटर है, दूसरी लोकेशन पे आपका सिस्टम है, तो आप अगर शेयर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू अगर कनेक्टेड है तो आप वहां से भी प्रिंटर को एक कमांड भेज सकते हो। ओके, मतलब जो भी रिसोर्सेज है वो शेयर हो सकते हैं ईच अदर में। ओके, थर्ड वन इज व्हाट,
the load on the host computer gets distributed and this in turn increases the efficiency. ओके जो भी होस्ट कंप्यूटर है वही सब काम नहीं परफॉर्म करेगा. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, नाम ही इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एक टास्क अगर किसी के पास है तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन अमंग द अदर सिस्टम्स आल्सो एंड इंक्रीज द efficiency also. So these are the advantages of your distributed operating system. Also, it is having two disadvantages. The first one was, since the data is shared among all the computers, so to make the data secure and accessible to few computers, you need to put some extra efforts. Okay, तो जो भी डेटा है वो क्या है, सारे कंप्यूटर के साथ शेयर किया गया है. तो आपको अगर इस डेटा को सिक्योर करना है और सिर्फ कुछ कंप्यूटर्स ही इसे एक्सेस कर पाए, इस तरीके से कुछ परमिशन सेट करनी है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे यहाँ पे. ओके, सेकंड डिसएडवांटेज इज व्हाट, इफ देयर इज एन प्रॉब्लम इन द कम्युनिकेशन नेटवर्क देन द होल कम्युनिकेशन विल बी ब्रोकन. अगर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में ही आता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क में ही आता है, तो ये कुछ काम नहीं करेंगे, मतलब सारे पूरा एग्जीक्यूशन इसका क्या होगा, फेल होगा. ओके, सो इज देयर एनी डाउट इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम? Yes. No, ma'am. Okay. So the last point, last type of your real-time operating system, the last point of your operating system is what? Real-time operating system. Okay. So the real-time operating systems are used in a situation where we are dealing with some real-time data. Okay. तो ये operating system कब use की जाती है, जब हम real-time data से deal करते हैं. Okay, so as soon as the data comes, the execution of the process should be done and there should be no delay. Okay, so जब जैसे डेटा आता है वैसे ही आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना होता है. Okay, and it should not have any delay. For example, no buffer delay should be there. Any of the delay, कोई भी टाइप का डिले यहाँ पे नहीं चलने वाला है. Okay, so real time operating system is a time sharing system that is based on the concept of clock interrupt. So real time operating system is also a type or example of your time sharing system, and it is based on the concept of clock interrupt. Okay, so whenever you want to process a large number of requests in a very short period of time, then you have to use or you should use the real time operating system. जब भी क्या होता है, डेटा लार्ज नंबर में आता है, लार्ज नंबर रिक्वेस्ट आर देयर एंड यू हैव वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन यू गो फॉर योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, द डिटेल्स ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द पेट्रोलियम इंडस्ट्री आर वेरी क्रूशियल. ओके, तो जो भी पेट्रोलियम हमारी इंडस्ट्री है उसका जो टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना होता है. ओके, सो यहाँ पे भी बहुत सारा डेटा होता है रिगार्डिंग द योर पेट्रोलियम इंडस्ट्री. ओके, सो दिस शुड बी डन इन रियल टाइम एंड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो ये जो भी हम कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर, तो ये बहुत शॉर्ट टाइम में और रियल टाइम में आपको करना है. ओके, अ स्मॉल डिले कैन रिजल्ट इन लाइफ डेथ सिचुएशन. ओके, तो अगर हमने स्मॉल डिले भी किया तो इसका जो रिजल्ट है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, दैट विल बी योर लाइफ डेथ सिचुएशन. सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो ये जो चीज़ें आपको करनी है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के साथ, या एयरप्लेन, आप एरोप्लेन भी वहाँ पे भी डेटा जो है वो इंस्टेंट एंड रियल टाइम चाहिए होता है. सो अगर इस सिचुएशन में अगर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करनी है तो आप यू कैन गो फॉर योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, so there are some types of your real-time system: hard real-time and soft real-time. Okay, so in this type, a small delay can lead to a drastic change. Okay, just a second. Yes. So in hard real time, in this type, a small delay can lead to a drastic change. So when the time constraint is very important, then we have to use the hard real time. Okay, तो जो भी small delay है, इसका जो भी इफेक्ट है वो बहुत ड्रास्टिक होने वाला है. तो आपको हार्ड रियल टाइम, मतलब टाइम कंस्टेंट जहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करनी है. ओके, और जिस केस में टाइम कंस्टेंट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, देन यू हैव टू यूज सॉफ्ट रियल टाइम operating system. Okay, so it is having advantages and disadvantages. So advantages is what, there is a maximum utilization of devices and resources. Okay, तो जो भी resources है, devices है, तो इसका maximum utilization यहाँ पे होने वाला है. Okay, and these systems are almost error free, क्योंकि एक error भी death कर सकती है. So this is very important, these systems are almost error free. Okay, और disadvantages क्या है, the algorithms used in real time operating system is very complex. Okay, अगर ये इतना important है, यहाँ पे लाइफ डेथ सिचुएशन है, तो जिसमें जो algorithms यूज किए हैं ये भी क्या है, that much complex है.
Now specific device drivers are used for responding to the interrupts as soon as possible. Okay, तो कुछ device drivers यहाँ पे use किए जाते हैं to respond the interrupt. Interrupt means any uninviting condition will be there, then it should have used some device drivers to respond that kind of interrupts. Okay, so these are some disadvantages and the advantage of real-time system. So these are the types of your operating systems. Any doubt in this? No, ma'am. Okay. Okay, so the next points are from the syllabus is what we have discussed the introduction of operating system, different types of operating system, then real-time operating system also we have seen, system components. We know that assembler, compiler, all that things are the system components. After that, we have discussed some OS services. Okay, in yesterday's lecture also we have seen OS services. We have seen system structured layered approach. Okay, so the next part is what process management. अभी यहाँ पे जो है ये सारे प्रोसेस रिलेटेड है. जो सेकेंड सेक्शन है आपके यूनिट नंबर 4 का, दैट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस. ओके, तो प्रोसेस क्या है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसके स्टेट्स क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, थ्रेड और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, प्रोसेस को कैसे शेड्यूल किया जा सकता है, उसके लिए डिफरेंट शेड्यूलर्स कौन से हैं, कौन से एल्गोरिदम्स आप यूज करोगे प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए. ये सारा जो सेकेंड पार्ट है, इट इज ऑल अबाउट योर प्रोसेस. Okay, so we have discussed the types of operating system. Now we are going to discuss the process management. Okay, all things about your process. Can anybody tell me what will be the process? Do they have any idea what is process? Yes, do you have any idea about process? So basically a program. Sorry, yes, please. And some command is passed to render and give the output of that command. Okay. Can you tell me the difference between process and program? Any program, any process? In terms of Program is a set of instructions, Hmm? and process is the, like, whatever happens in that program, whatever commands we pass, that is process. Okay, it is half true, half not true. Okay, so when we are dealing with our computer system, for example, you are opening a Microsoft Office. Okay, so Microsoft Office is an program. Okay, when you double click on that Microsoft Office, it will get open. Okay, and that becomes a process. Okay, जब भी कोई प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं, देन अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में है तो उस प्रोग्राम को आप बोलोगे प्रोसेस. ओके, कोई भी मतलब मीडिया प्लेयर है या आपका लैंग्वेज का प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल जावा प्रोग्राम आपने लिखा, नोटपैड में लिखा, जावा सी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, जावा सी लिखा, जावा लिखा. ओके, जब ये एग्जीक्यूट होगा दैट प्रोग्राम विल बिकम एन प्रोसेस. ओके, तो कोई भी प्रोग्राम जो है वो रनिंग स्टेट में अगर है, एग्जीक्यूशन स्टेट में अगर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस. तो आपको प्रोसेस एंड प्रोग्राम में डिफरेंस पता होना चाहिए. ओके, कोई भी प्रोग्राम, या आप मूवी देख रहे हो, आपके हार्ड डिस्क में एक मूवी स्टोर है, सेव, उस पर आप डबल क्लिक करते हो तो वो क्या होता है, किसी भी मीडिया प्लेयर के हेल्प से वो ओपन हो जाता है. ओके, दैट इज प्रोसेस. तो पहले वो क्या था, प्रोग्राम था. जब हम उसको रन नहीं करते थे, वो बस हमारे लैपटॉप में, हमारे प्रोग्राम में सेव था, दैट वाज द प्रोग्राम. अगर हमने उसे डबल क्लिक किया, उसको रन किया, दैट कम्स इनटू द मेन मेमोरी एंड इट विल स्टार्ट प्लेइंग आपका जो मूवी है. और उस मूवी को हम क्या, अभी वो एग्जीक्यूशन स्टेट में है, आपका मूवी चल रहा है, प्ले हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके, सो दैट बिकम्स एन प्रोसेस. तो इन जनरल टर्म्स, a program in execution is called as process. Any doubt? Yes. Do you understand about the process? What is a process? Yes, ma'am. Okay, a simple definition is that a program in execution is called as process. Okay. So a process is basically a program in execution. So the execution of a process must progress in a sequential fashion. ओके, तो इसका जो एग्जीक्यूशन है प्रोसेस का, वो सिक्वेंशियल फैशन में ही होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, वी राइट आवर कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ टेक्स्ट फाइल.
Okay, Java program you can write in text file, and when we execute this program, it becomes a process which performs all the tasks mentioned in the program. तो program किसका है? For example, addition का है तो addition perform करेगा. Program multiplication का है, multiplication करेगा. Program किसी और चीज का है तो वो उसका जो भी task है, जिस program में हमने जितने भी instructions लिखे हैं, that will be executed by that program. Okay, और वो program अगर क्या है आपका execution state में, तो उस program को हम process बोलेंगे. Okay, so when a program is loaded into the main memory and it becomes a process, it can be divided into 4 sections. Okay, जो कोई भी प्रोग्राम आपका मेमोरी में है, okay, उसको हमने लोड किया है मेन मेमोरी में. मेन मेमोरी में कब आता है प्रोग्राम? जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, और जब वो एग्जीक्यूशन स्टेट में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं. सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन. तो आपका जो प्रोसेस है 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है. तो वो 4 सेक्शंस कौन से? स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डेटा. ओके, स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डेटा, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. तो सबसे ऊपर होता है स्टैक, उसके बाद कुछ स्पेस होती है, उसके बाद है हीप, डेटा एंड टेक्स्ट. ओके, स्टैक, हीप, डेटा एंड टेक्स्ट. So let's see one by one what is stack. So stack is what? The process stack contains the temporary data such as method, function, parameter, return address and local variables. Okay, जो भी temporary data है आपके प्रोसेस में तो वो stack में जाके सेव होता है. ओके, तो प्रोसेस के स्टैक क्या है? इट इज containing of temporary data such as method, function, parameters, return address and local variables. Okay, so heap is what? Heap is dynamically allocated memory to a process during its runtime. So heap is a part of your memory but it is a dynamically allocated memory. Okay, तो ये कब क्रिएट की होती है? जब वो प्रोसेस एक्चुअल रन होती है. ओके, टेक्स्ट क्या होता है? दिस इंक्लूड्स द करंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड द कंटेंट्स ऑफ योर प्रोसेसर रजिस्टर्स. ओके, किसी कोई यहाँ पे हम जावा का ही प्रोग्राम यूज करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी पॉइंट करेगा. ओके, अगर वहाँ पे कुछ एडिशन वगैरह हो रही है तो कौन से रजिस्टर में एडिशन से, कौन से रजिस्टर में वैल्यू से हो रही है, ये सारी जो चीजें हैं वो टेक्स्ट एरिया में रहती है. तो जो आपका प्रोसेस है विच आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, स्टैक, हीप एंड टेक्स्ट. एंड द लास्ट वन इज व्हाट? डेटा. So this section contains the global and static variables. Okay, अगर आपके प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स है ग्लोबल एंड स्टैटिक तो वो डेटा भी डेटा पार्ट मेमोरी का जो है प्रोसेस का जो डेटा पार्ट है वो होल्ड करके रखेगा. ओके, सो दीज आर सम components of your process. Okay, your process when it is in memory then it is divided into these 4 sections. Any doubt in this? Yes, is there any doubt in process? Okay, so next part is what? Process state diagram. तो process के क्या है? different states है. For example, अब process क्या हो रही है? Start हो रही है execute के लिए. ओके, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन के लिए चली जाएगी तो वो रनिंग स्टेट में आ जाएगी. उसके बाद अगर उसको कुछ प्रिंटर के साथ कुछ काम करना है तो वो वेटिंग, प्रिंटर कोई और प्रोसेस यूज कर रही है तो वो वेटिंग स्टेज में जाएगी. ओके, फॉर एग्जांपल किसी ने डायरेक्टली क्लोज का बटन किया तो अबाउट स्टेट में जाएगी. ओके, सो प्रोसेस कैन गो थ्रू द डिफरेंट स्टेट्स. और अगर कुछ नहीं आया, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई तो वो टर्मिनेट स्टेट में जाएगी. ओके, तो प्रोसेस के क्या है? डिफरेंट स्टेट्स है. तो लेट्स सी, व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट पासेस थ्रू द डिफरेंट स्टेट्स. जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो डिफरेंट स्टेज के थ्रू वो पास होती है. दीज स्टेजेस में डिफर इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड द नेम्स ऑफ द स्टेट्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज. ओके, तो ये जो स्टेजेस है या स्टेट्स है तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में वो डिफरेंट होते हैं. ओके, और उनके नेम भी स्टैंडर्डाइज नहीं है. कोई स्टार्ट बोलता है, कोई न्यूबॉर्न बोलता है, कोई टर्मिनेट बोलता है, कोई फिनिश्ड बोलता है टर्मिनेट को ही. ओके, कोई वेटिंग स्टेज में बोलता है, कोई ब्लॉक्ड बोलता है. ओके, तो ये जो नेम्स है प्रोसेस के वो स्टैंडर्डाइज नहीं है. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है? अलग अलग है. ओके, इन जनरल अ प्रोसेस कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेट्स एट अ टाइम. तो जनरल 5 स्टेट्स यहाँ पे दी गई है. तो प्रोसेस कैन एट अ टाइम अ प्रोसेस कैन बी इन वन ऑफ दिस स्टेट्स. ओके, सो यू कैन सी द फर्स्ट स्टेज वाज स्टार्ट, देन रेडी, देन रनिंग, देन टर्मिनेटेड एंड देन वेट. ओके, स्टार्ट में ये लोड होने के लिए स्टार्ट होती है या प्रोसेस यहाँ पे नहीं क्रिएट की जाती है. रेडी स्टेट में वो रेडी टू एग्जीक्यूट होती है. यहाँ पे रेडी है वो, लेकिन उसको अभी प्रोसेसर नहीं मिला है. रनिंग स्टेट में कब जाएगी? जब उस प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा रन करने के लिए. तो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन है ये, लेकिन अभी रन नहीं हो रही है. आफ्टर दैट रनिंग. ओके, तो मतलब यहाँ पे उसको प्रोसेसर मिला है रन होने के लिए, मतलब ये करंटली एग्जीक्यूट हो रही है. अगर सक्सेसफुल इसको कुछ इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए तो वो डायरेक्टली टर्मिनेटेड स्टेज में जाएगी. अगर इसको कुछ स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो वो वेटिंग स्टेट पे जाएगी.
ओके अगर स्क्रीन पे कोई और काम चल रहा है तो ओके उसका अगर वेटिंग टाइम खत्म होता है तो वो वापस रेडी स्टेट में आएगी, उसको वापस प्रोसेसर को अलोकेट किया जाएगा और वापस वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. तो प्रोसेस कैन बी इन वन ऑफ द स्टेट्स, इट कैन बी इन स्टार्ट स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, टर्मिनेट और वेट. ओके तो ये नेम्स जो है वो आपके स्टैंडर्डाइज नहीं, किसी बुक में आपको ब्लॉक मिलेगा, किसी बुक में फिनिश्ड मिलेगा, स्टार्ट के लिए न्यू बॉर्न मिलेगा. ओके तो ये नेम्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज बट द वर्किंग आर द सेम. ओके तो वेट सेट में क्यों जाएंगे, क्योंकि इट विल वर्क फॉर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ओके सो लेट्स डिस्कस दिस स्टेट्स. तो स्टार्ट सेट में क्या होता है, दिस इज द इनिशियल स्टेट व्हेन अ प्रोसेस इज द फर्स्ट स्टार्टेड और क्रिएटेड. तो ये पहली स्टेट है जहाँ पे प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है या क्रिएट की जाती है नई प्रोसेस. ओके उसके बाद है रेडी स्टेट. ओके द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू अ प्रोसेसर. तो रेडी है वो एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन उसको प्रोसेसर अभी तक नहीं मिला है. Okay, so ready processes are waiting to have a processor allocated to them by the operating system so that they can run. तो ready processes ऐसी processes है जो कि प्रोसेसर के लिए वेट कर रही है. ओके और उनको कौन allocate करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेस को allocate करेगा in the ready state. Okay so that they can run. So process may come into this state after start state or while running it by but interrupted by the scheduler to assign CPU to some other process. और रेडी स्टेट में कब आएगी आपकी प्रोसेस, आफ्टर स्टार्ट वो आएगी, स्टार्ट हुई क्रिएट हुई तो रेडी स्टेट में आएगी. और एक तरीके से आ सकती है अगर वो करंटली रनिंग है ओके और शेड्यूलर ने इंटरप्ट किया क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस दूसरी आई है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो इसको निकाला जाएगा और प्रायोरिटी जिसकी हाई है उसको प्रोसेसर को अलोकेट किया जाएगा. तो सो दैट प्रोसेस विल कम इनटू द रेडी एंड वेट फॉर द प्रोसेसर. तो इन दो तरीकों से आपके जो भी प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में आ सकती है. ओके सो द नेक्स्ट इज व्हाट, रनिंग. Once process has been assigned to a processor by the OS scheduler, the process state is set to running and the processor executes its instructions. Okay तो एक बार उसे प्रोसेसर मिल गया by the OS, then it will start running, it will start execute its instructions. Okay now the last state is what, waiting. Waiting में क्या होता है, process moves into the waiting state if it needs to wait for the resource such as waiting for user input or waiting for a file to become available. ओके तो जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है उनके लिए अगर वेट करना हो तो वो प्रोसेस कहाँ पे जाएगी, वेटिंग सेट में जाएगी. ओके एंड फाइनली इज वो टर्मिनेटेड और एग्जिट. Okay once the process finishes its execution or it is terminated by the operating system, it is moved to the terminated state where it waits to be removed from the main memory. Okay तो अगर सक्सेसफुल इसका एग्जीक्यूशन हुआ है, फिनिश हुआ है एग्जीक्यूशन, तो ये टर्मिनेट की जाती है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम और वो क्या करती है, मेन मेमोरी से हटाई दी जाती है. Okay so these are the process states. The first is start, then ready, then running, then finished and इनके बीच में आता है waiting state. You can see in the diagrams also. Okay start, ready, running, terminated. रनिंग के बाद यहाँ पे वेटिंग स्टेज में है, वेटिंग टाइम खत्म होने के बाद वापस वो रेडी स्टेट में चला जाता है. ओके सो इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. ओके सो द नेक्स्ट पार्ट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. सारी चीजें हम प्रोसेस के बारे में देख रहे हैं, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. सो लेट मी डाउनलोड द अटेंडेंस शीट. Okay, you people can leave the meeting.